వెంకట్ గారు, భవానీ రెడ్డి గారు, రియాజ్ గారు, సామ రామ్మోహన్ గారు, లింగం యాదవ్ గారు, అలాగే ఏఐసిసి నుంచి వచ్చినటువంటి అబ్జర్వర్, ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ నుంచి తెలంగాణ మీడియా వ్యవహారాలకు అబ్జర్వర్గా ఈ లోక్సభ ఎన్నికలకు వచ్చినటువంటి సుజాత పాల్ గారు ఈ సమావేశంలో ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ సమావేశం నిన్న పార్లమెంట్లో నరేందర్ మోడీ గారు చివరి ప్రసంగం, ఈ చివరి పార్లమెంట్ సమావేశాలలో చివరి ప్రసంగంలో 10 ఏళ్ల పాలనలో నరేందర్ మోడీ గారు 10 ఏళ్లు ప్రధానమంత్రిగా ఉండి వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల మీద చర్చ చేయాల్సింది పోయి ప్రస్తుత పరిస్థితులు, భారతదేశంలో నిరుద్యోగం, భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి మాట్లాడకుండా ధరల పెరుగుదల, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు, ఇవన్నీ చర్చ చేయకుండా 10 ఏళ్ల అధికారంలో ఉండి కూడా ఇంకా కాంగ్రెస్ మీద విషం జల్లే ప్రయత్నం చేసిర్రు. ఆయన చాలా గొప్ప వక్త, మాటలు మాట్లాడటమే కాకుండా చేతలు చేస్తే బాగుండేది. భారతదేశం అంతా ఐక్యతగా ఉండాలి, అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఒకటే, నాకు మన శరీరంలో అన్ని భాగాల మాదిరిగా భారతదేశం కూడా కలిసి ఉండాలి అని ఉపన్యాసాలు ఇచ్చుకుంటా ఎక్కడెక్కడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వం లేకుండా ఎక్కడెక్కడైతే ప్రతిపక్ష ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో వాటిని కూల్చేయడమే ఒక లక్ష్యంగా. మీరు నిన్న మొన్న చూసిరు జార్ఖండ్, బీహార్, ఇట్లా ఎన్ని రాష్ట్రాలల్లో కూటమి, ఇండియా కూటమిని విచ్ఛిన్నం చేసే ప్రయత్నం చేసుకుంటే మళ్ళీ పైన మాత్రం మాటలు ఎట్లున్నాయంటే నిన్న పార్లమెంట్లో చూస్తే, ఎవరన్నా చూస్తే విశ్వగురు నరేందర్ మోడీ గారు మనందరికీ దేవుడు, భారతదేశంలో గత 10 ఏళ్ల ముందు మనం బట్టలు కూడా వేసుకుంటే వాళ్ళం కాదు, ఈయన వచ్చినాకనే బట్టలు వేసుకోవడం మొదలు పెట్టినాం, చదువుకోవడం మొదలు పెట్టినాం, ఉద్యోగాలు వచ్చడం మొదలైనాయి, 3 పూటలు అన్నం తింటున్న మాదిరిగా చెప్తుండు పిట్ట కథలు. చెప్తే చెప్పిండు, మళ్ళీ ఆయన కథ ఎట్టుంటుందంటే చరిత్రనే తిరిగి రాస్తాడు. భారతదేశంలో స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత నెహ్రూ గారు రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకంట. మరి రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకైతే డాక్టర్ బాలాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఎవరు క్యాబినెట్లుండు? కాన్స్టిట్యూషన్ ఎవరు రాసిర్రు? రిజర్వేషన్లు ఎవరు తెచ్చిర్రు? ఈ మాత్రం పరిజ్ఞానం లేదనుకుంటుండా ప్రజలకు భారతదేశంలో? వ్యతిరేకుంటే ఈరోజు మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి భారతదేశంలో రాజ్యసభ అపోజిషన్ లీడర్గా ఒక దళితుడు ఉండి అదే దళితుడు పార్టీకి అధ్యక్షత కూడా వహిస్తుండు. కాంగ్రెస్ పార్టీ రిజర్వేషన్ల పైన మనకేమి విపక్ష లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీయే సెక్యులర్ పార్టీ. కాంగ్రెస్ పార్టీలనే దళితులకు, కాంగ్రెస్ పార్టీలనే క్రిస్టియన్లకు, కాంగ్రెస్ పార్టీలనే ముస్లింలకు అవకాశాలు ఇచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ పార్టీలన్నీ, ఈ కులాలన్నిటి మనుగడ కోసం ఈ భారతదేశంలో లార్జెస్ట్ సెక్యులర్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీగా ఉన్నటువంటి భారతదేశాన్ని ఆఖరికి డెవలప్మెంట్ గురించి మాట్లాడకుండా పేరునే మార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేసినటువంటి మోడీ గారికి ఏ అధికారం లేదు గత చరిత్ర గురించి మాట్లాడటానికి. ఇందిరాగాంధీ గారి గురించి మాట్లాడతాడు. ఇందిరాగాంధీ గారు ఎవరు? ఆమె 13 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నప్పుడే ఆమె స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొంది వాళ్ళ నాయనతోటి, బాపూజీ గారితో. అప్పుడే ఆమె వానర సైన్ అని చెప్పి ఒక 60,000 మందితోటి ఒక టీమును తయారు చేసుకొని పనిచేసినటువంటి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి నేపథ్యం ఆమెది. మరి ఆమె ఎవరి కోసం ప్రాణాలు త్యాగం చేసింది? అలా భారతదేశంలో జరుగుతున్న పరిణామాలను ఎదుర్కొంటేనే కదా ఆమెను దుండగులు చంపింది. అంటే ఈ భారతదేశాన్ని సమగ్రంగా కాపాడడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఇందిరాగాంధీ కానీ, రాజీవ్ గాంధీ కానీ ప్రాణాలు అర్పించిర్రు. మోడీ గారు చరిత్రనే మార్చే విధంగా ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీకి 40 సీట్లన్న రావాలని కోరుకుంటున్నట్టు ఆ మహానుభావుడు. నాకు 400 సీట్లు వస్తాయని ఆయనే చెప్పుకుంటున్నాడు. నేను ఒక్కటే చెప్తున్నా, మోడీ గారు మీకు మంచి తెలివితేటలు ఉన్నాయి, ప్రజలను మోసం చేసేటువంటి మాటలు ఉన్నాయి,
పదే పదే మీరు మాకు 300 వస్తాయి, మాకు 400 వస్తాయి, 3.0 ప్రభుత్వాన్ని మొదలు పెడుతున్నామని చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా నేను ఈరోజు చెప్తున్నా ప్రజలకు, రానున్న రోజులలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని మొత్తమే కూనీ చేసి నియంత పాలన సైడ్ ఆలోచిస్తున్నటువంటి మోడీని ఎట్టి పరిస్థితిలా మనం మూడోసారి ప్రభుత్వంలోకి రాకుండా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ భారతదేశం బ్రిటిషర్ల చేతి నుంచి గుంజుకొచ్చి మనకు ఒక స్వతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ 135 ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ గత 10 ఏళ్లుగా అధికారంలో లేము. మేమున్నప్పుడున్న జీడిపి, మేమున్నప్పుడున్నటువంటి ఇన్ఫ్లేషన్ కనుక మీరు 2004 నుంచి 14 దాకా మీరు లెక్కలు చూసినట్టయితే 2014 నుంచి 2024 ఉన్న పరిస్థితి ఏందో మీకు అర్థమవుతుంది. ఏందంటే వీళ్ళు కేవలం 2-3 సంస్థల అభివృద్ధి కోసమే పనిచేస్తుర్రు. కొన్ని వందల సంస్థలు నిర్వీర్యం అయిపోయినాయి. ఇక అటువంటి విషయాలన్నీ సుజాత పాల్ గారు మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. భారతదేశంలో పిఎస్యుల పరిస్థితి ఏంది, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏమవుతున్నాయి, వివిధ విద్యా సంస్థల పరిస్థితి ఏంది, ఈరోజు ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఖాళీలు ఉన్నాయి, మన వాస్తవ పరిస్థితులన్నీ కూడా సుజాత పాల్ గారు మీకు విశ్లేషిస్తారు. ఇప్పుడు వారు మాట్లాడతారు. धन्यवाद चामला जी, रमन्ना जी, भवानी रेड्डी जी, डॉक्टर रियाज जी, चामला जी, लिंगम यादव जी, सामा राम मोहन जी और मीडिया के मित्रों, नमस्कार। आज जब हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में आजादी है, इस देश में हमें अधिकार है कि हम विविधता में एकता दिखाएं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी दिखाएं, क्योंकि वही हमारा संस्कार है, वही हमारा कल्चर है। मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल के बाद क्या कर रहे हैं? 10 साल पहले कहा था उन्होंने कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और अगर आपने लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सुना तो वो केवल कांग्रेस 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 करते हुए दिखाई दिए। क्या मतलब है कि आप फेलियर हैं। आप पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के अपने अचीवमेंट्स के ऊपर एक शब्द नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। आप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं। आपके नेता, हमारे नेता आज के राहुल गांधी जी, जो उसी राह पे चले हैं जो महात्मा गांधी ने दिखाया, जो हमारे आज के महात्मा हैं, और वो भी राहुल गांधी हैं। उनसे आप इतना डरते हैं कि आप जब खड़े होते हैं राष्ट्रपति के भाषण पर बोलने के लिए, तो आप उनके भाषण पर कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि आपको तो बताना है कि आपने क्या किया। आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने 10 साल पहले जुमले दिए थे, 5 साल पहले जुमलों को दोहराया था, याद है 2019 में भी उन्होंने यही कहा था, पिछले 70 साल में ये कुछ नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, और कहा कि अगले 5 साल में हम ये कहा। तो हम कहते रह गए, भाई पिछले 5 साल के अचीवमेंट्स तो बता दो, 2014 से 2019 क्या किया, नहीं बताया। बोलते गए, वन वे ट्रैफिक होता है उनका, आपने सुना ना वो मन की बात, उनके मन की बात, आपकी जन की बात वो सुनते नहीं है, इसलिए वो बोलते रहे। और आज फिर मैं यहाँ आपके सामने, हम सब आपके सामने इसलिए आए हैं क्योंकि हमने देखा लोकसभा में पहले, फिर राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने पिछले 10 साल के बारे में नहीं कहा, लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कहा, नए जुमले दे दिए और कहा 5 साल बाद ये करेंगे, 10 साल में ये करेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने अब तब से लेकर अब तक ये नहीं किया। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में थे, और मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करूंगी, उसके पुरानी भी बात नहीं करूंगी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा कि पिछली सरकार ने मुझे इतनी मुश्किल में डाला। उन्होंने कहा हम हर मुश्किल को पार करेंगे, हम हर उस चीज को करेंगे जिससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो, उनको घर दिया जाएगा, उनको रोजगार दिया जाएगा, ये कहा उन्होंने। और एक और बात मैं जरूर आपको याद कराना चाहती हूँ, मोदी जी ने कुछ दिन पहले क्या कहा था, एक अकेला सब पे भारी, याद है आपको? यही एक्शन था ना, एक अकेला सब पे भारी। लेकिन अब
ले रहे हैं वो सबको बारी बारी। एनडीए की बातें करने लग गए हैं। पहले सिर्फ कह रहे थे बीजेपी अकेले ही चलेगी, जेपी नड्डा ने कहा छोटी छोटी पार्टियों को खत्म कर देंगे। अब कह रहे हैं कि हमको तो सबको साथ लेना है। क्यों लेना है? इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है और लोग इनसे परेशान हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू हुई मणिपुर में तो रास्ते में बाधा, उसके बाद आपने देखा बिहार पहुंचते पहुंचते बिहार में सरकार गिराई। इसलिए राहुल गांधी जी के रास्ते में वो बाधाएं लाएंगे। मगर जो कहता था ना एक अकेला सब पे भारी, वो आज डर गया है राहुल गांधी से। और उनके अंदर जो मानसिकता उनकी है, जो उनके अंदर नफरत भरी हुई है, वो बाहर आ रही है जब वो उनको अपशब्द कहते हैं जो अब दुनिया में नहीं है। क्योंकि आपको तो उन्होंने जो स्कूल दिए थे उनमें आप पढ़ जाते तो आप इंजीनियर भी बन सकते थे, आप पॉलिटिशियन बने। आप पॉलिटिशियन भी बहुत पढ़े लिखे बन सकते थे। इनकी तो डिग्री के बारे में नहीं पता। क्यों? डिग्री देखी क्या किसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की? हर नेता की डिग्री आपको myneta.com पे जाएंगे ना तो हर नेता जो चुनाव लड़ता उसकी भी डिग्री आती है। नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखी आपने? उन्होंने भी तो चुनाव लड़ा ना, वो भी तो विधायक थे, उनकी डिग्री देखी? वो भी तो अब सांसद है, पार्लियामेंटेरियन है, देखिए आपने डिग्री? myneta.com पे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो आज अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा और प्रधानमंत्री मोदी जी को क्या कहना चाहिए था, तो मैं केवल ये कहूंगी कि जिन बातों पे उन्हें बोलना चाहिए था वो कर नहीं पाए। और हम उनके वंशज हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय में मोदी जी के पूर्वज आरएसएस वाले क्या कर रहे थे? हिंदू महासभा के साथ थे और कह रहे थे अंग्रेजों भारत मत छोड़ो। अगर अंग्रेजों को हमने ना निकाला होता ना, हमारे पूर्वजों ने ना निकाला होता, तो आज हम आजाद नहीं होते। हमने उन्हें निकाला, इसलिए आज आप और मैं एक लोकतांत्रिक देश में बैठे हुए हैं। मगर मोदी जी से यह जानना है कि जो बेरोजगारी है वो कोरोना के पहले ही 35 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 45 इयर्स के सबसे ऊंचे जगह पर पहुंच गई। कैसे? जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अगर बात करूं तो बेरोजगारी दर 2.2% थी। मैं आपको आंकड़े दे रही हूं, 2.2% मात्र। और इनका 45 साल का हाई हो चुका कोरोना के पहले। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ 5.6% पर ले आई है, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे पूरी दुनिया में रिसेशन था। लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा था। विदेशों में रहने वाले हमारे युवा नौकरी छोड़ के या नौकरी से निकाले जाने के बाद भारत वापस आ रहे थे और तब भी हमारी जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट थी तब 8.13% थी। नौकरियों का भी ध्यान, जीडीपी का भी ध्यान, ये किसने किया? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इन्होंने 5.6% के निचले स्तर पर जीडीपी ग्रोथ को ले गए। ये इनका आंकड़ा है, ये हमारा आंकड़ा नहीं है। अगर हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, आपको याद कराती हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी बैठे एक बुलक कार्ट पे, एक बैलगाड़ी पर और गए थे संसद। जानते हैं क्यों गए थे? इसलिए गए थे क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि हम कंप्यूटर्स ला रहे हैं। अभी आईटी की बात नहीं हो रही थी, ये वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं था, कंप्यूटर ला रहे हैं। और भाजपा के सारे नेता हाय तौबा मचा रहे थे कि अरे हमारे लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि उनके यहाँ के मोदी जी ने उसका मिसयूज भरपूर किया। लेकिन डिजिटल इंडिया का जो फाउंडेशन था, जो राजीव गांधी जी ने रखा, जिसको आगे बढ़ाया पीवी नरसिम्हा राव जी ने, या जिसको और आगे बढ़ाया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, उन्हीं के कारण आधार किसके समय पे आया था? आधार आया था यूपीए की सरकार के समय पर। जो फाउंडेशन था उसी की वजह से डीबीटी ट्रांसफर्स आज हो पा रहे हैं। डीबीटी का फाउंडेशन रखा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और उसके अलावा अगर हम बैंक अकाउंट्स की बात करते हैं, जो चेंजेस थे वो तो पहले ही आने लग गए थे। तो ये कौन सी नई नई बातें करते हैं? ये यही जाने। सच्चाई है कि डिजिटल इंडिया आज है
क्योंकि राजीव गांधी थे और राजीव गांधी ने हर परिस्थिति में प्रण लिया था कि हमारे युवाओं को कंप्यूटर्स लाके देंगे, टेक्नोलॉजी लाके देंगे और तभी यह देश आज आईटी इंडस्ट्री में इतना आगे है। हम हैदराबाद में आईटी कहां पहुंच गया है आप जानते हैं। इसका कारण मोदी जी नहीं है, इसका कारण राजीव गांधी जी है और जो उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। एक और आंकड़ा दे देती हूं, मोदी जी बजट लेके आए, आप देखिएगा बजट में उन्होंने कहा है, सब अखबारों में मैं देख रही थी कल परसों, कि जो हम एक्सपेंडिचर करेंगे वो एक्सपेंडिचर कितना है, जो बजट किया है उससे कहीं ज्यादा है। तो अगर आमदनी है 10 रुपए तो खर्चा 13 रुपए कैसे करेंगे भाई साहब, बहन जी ये तो बताइए। मैं बताती हूँ, डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। जैसे इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन 147 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कर दिया है, यानी कि डीआरडीओ है ना, यहाँ पूरे देश में है डीआरडीओ, क्या उसको भी बेचने की कोशिश हो रही है? क्योंकि उसकी लेबोरेटरीज तो बंद करी जा रही हैं, वहां पे लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही है। इसका मतलब है कि आप पीएसयूज को बेच के, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का विजन था, द आइडिया ऑफ इंडिया, कि भारत के लोगों को नौकरियां मिलेंगी इन पीएसयूज में, उन पीएसयूज को बनाने में पैसा लगा, उन पैसे से जो पैसा आया वो देश के लिए लगा और अब वो अपने दोस्तों को बेचकर उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए जेट खरीदने के लिए कर रहे हैं, अपने लिए महल बनाने के लिए खरीद रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी। अगर बात करें सरकारी नौकरियों की, देखते हैं हम कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स कहां हैं। एक तो आप जानते हैं कि इन्होंने पेंशन स्कीम खत्म कर दी। कांग्रेस पार्टी जब छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आई तो दोनों जगह पे हम क्या लेकर आए, हम ओल्ड पेंशन स्कीम लेके आए, क्योंकि यही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की डिमांड थी। इन्होंने बंद कर दिया और अब नौकरियां भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि 30 लाख गवर्नमेंट जॉब्स वेकेंट है, 30 लाख। और इसमें सबसे ज्यादा किसके ऊपर असर हो रहा है? जो एससीज है, शेड्यूल्ड कास्ट, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से जिन लोगों को नौकरियां मिल रही है वो मिल रही है, लेकिन जो 30 लाख खाली पड़े हैं उनको भर नहीं रहे, और जिनको ले रहे हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को प्रोपोर्शनेटली नहीं लिया जा रहा है। यह है दुर्भाग्य इस देश का। देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ओबीसी हूं, देश का प्रधानमंत्री कहता है मैं गरीब घर का ओबीसी हूं, लेकिन आपको याद करा दूं, उनकी जो कम्युनिटी है ओबीसी की, वो तब ओबीसी की लिस्ट में आई जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने, पर फिर भी उन्होंने अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए सोचा, इसका स्वागत है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बात करी और रेवंत रेड्डी जी ने कहा है कि कास्ट सेंसस तेलंगाना में भी होगा, कर्नाटका में भी होगा, तो मोदी जी ने क्या करा? मोदी जी ने कहा मैं किसी जाति में विश्वास नहीं करता, मैं अमीर और गरीब की जाति में विश्वास करता हूं, यानी कि मैं अडानी और अपने बारे में सोचता हूं और गरीबों को देखता हूं। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि गरीबों के लिए आप कर क्या रहे हैं ये तो बता देते। लेकिन अब क्या कहते हैं वो, कल भी बोला राज्यसभा में, उसके पहले लोकसभा में, कि मैं सबसे बड़ा ओबीसी हूं। उनके लिए एक दिक्कत है, मैं सबसे बड़ा अंतर्यामी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सब जगह मौजूद हूं, ओमनीसेंट हूं, ओमनी प्रेजेंट हूं, ओमनीसेंट हूं। लेकिन आप कैसे बनते हैं महान? आप जब शिक्षा पाते हैं, ज्ञान पाते हैं। तो मोदी जी के स्कूल है एकलव्य स्कूल, भाई उनका ये काम है, एकलव्य की उंगली काट दो, और वो भी जिस हाथ से वो लिखता है, सीधे हाथ से लिखते हैं तो इसकी काट दो, इस हाथ से लिखते हैं तो इसकी काट दो। क्यों? क्योंकि वहां पर टीचर्स की इतनी बुरी शॉर्टेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। 70% जो टीचर है वहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में। आप खुद सोचिए ना, हम सब तो स्कूल में पढ़े हैं, क्या करें? मोदी जी तो मतलब वो टाई पहनकर चाय बेचते थे, वो कहते हैं, मगर पढ़ाई लिखाई मुझे लगता है कि उनके माता पिता ने उन्हें बहुत अच्छी दी, बहुत अच्छी दी, क्योंकि जिस तरीके से वो बोलते हैं आज, वो किसी टीचर ने तो सिखाया होगा। घर में माँ होती है,
और बाहर टीचर होती है। तो उनको मेरा सलाम है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि जो टीचर्स है, अगर आप बताइए कि आपका एक टीचर आता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 6 महीने के लिए और फिर वो छोड़ के चला जाता है, तो दूसरा टीचर आएगा, आपको दोबारा से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तो बच्चों की एजुकेशन पे क्या असर होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के आने के बाद हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। आप इसका मतलब समझते हैं कि जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम दूसरे का फायदा कर रहे हैं, क्योंकि वो चीजें तो हमें महंगी मिलेंगी। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे तो हमारे लोग जो है वो मजबूत होंगे। मोदी जी बता दें कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कि हमारे लोगों को बाहर की चीजें खरीदनी पड़ रही है, मेड इन इंडिया क्यों नहीं हो रही है। जैसे टेलीफोन है, मेड इन इंडिया बोलते हैं, अंदर का माल जो है वो सारा मेड इन चाइना हो जाता है। ये क्या है भाई। और अगर उनकी बात हम करते हैं डेटा के, तो एनएसएसओ डेटा नहीं है और हमें निर्भर करना पड़ता है CMIE डेटा पर। सेंसस 2021 नहीं हुआ और हर व्यक्ति इस कमरे में जो बैठा है, इतनी उम्र है कि उन्होंने 1 या 2 सेंसस तो हर हालत में देखे होंगे, मगर 2011 के बाद एक सेंसस नहीं देखा। तो मोदी जी को बताना चाहिए कि आप भाषण किसके ऊपर दे रहे थे, कांग्रेसी नेताओं पे दे रहे थे, या ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी सरकार ने पिछले 5 साल या पिछले 10 साल में क्या किया। मगर मोदी जी ने बताया कि अगले 5 साल में ये करेंगे, मगर पिछले 5-10 साल का रिपोर्ट नहीं दी, पिछले 5-10 साल की जिम्मेदारी नहीं ली। और आज युवा बेरोजगार है और न्याय की मांग है, न्याय की गुहार जो लगा रहा है उसके लिए चल रहे हैं राहुल गांधी। और मोदी जी ने कहा था